Hello, friends. Welcome back again. So, today we'll be discussing another story. The name you can see here, The Black Dot. उस स्टोरी को हम आज अच्छे से अच्छे तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो जर्नी है इंग्लिश पे एक्सपर्ट होने का, इंग्लिश पे मास्टर्स होने का, उस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हम एक ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा एक स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि उसको अच्छे से अच्छे तरह एक्सप्लेन करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। सो वीडियो को बिना स्किप के देखने की कोशिश करें। पहले हम एक बार उसको लाउडली पढ़ेंगे, धीरे धीरे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें ताकि जो रीडिंग कैपेसिटी है, जो रीडिंग कैपेबिलिटी है, वो आपका भी बिल्डअप हो जाए। देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड बाय वर्ड। सो बने रहिए हमारे साथ, हम एक एक वर्ड की मीनिंग भी आपको बताएंगे। तो पहले जो हमारा है, हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। द ब्लैक डॉट। I would like to share a beautiful story of positive thinking that I read a couple of days ago. One day, a professor entered the classroom and announced a surprise test. Hearing this, all students got anxious and started thinking about what would come up in the test. The professor distributed the question paper with the front side facing down. After handing over the papers to all the students, he asked them to turn the page and start the test. To everyone's surprise, there were no questions in the test paper. There was just a black dot in the center of the page. Everyone was startled and looked at the professor in awe. The professor told the students, I want you to write a few lines about what you see on the paper. All the students were stupefied, but since they didn't have a choice, they started writing the answer. Once everyone was through with the test, the professor collected all the answer sheets and started reading out each answer aloud in front of the whole class. Without an exception, all the students had written about the black dot, mentioning about its position, size, etc. After reading out all the answers, the professor addressed the students and told them, none of you will be graded on this test. I just wanted you to ponder over something. All of you wrote about the black dot. No one wrote about the white part of the paper. The same thing happens in our lives too. We all have a white paper to observe and learn from, yet we always focus on the dark spots. We have so many reasons to celebrate our parents, co workers, friends, good health, a satisfactory job, a child's smile, the miracles witnessed every day, and so on. However, we simply limit our horizons by focusing on just the dark spots, our disappointments, our frustrations, our fears and anxieties, things that bother us, people that wronged us, etc. In our day to day lives, we tend to take so many good things for granted and focus our energy on insignificant dot like failures and disappointments. Though these dark spots are quite small as compared to the good things that we have in our lives, yet they perturb our minds and do not let us think positively. Take your eyes away from the black dots of your life. Try and focus on the brighter side of life and let positivity govern your thoughts. ये हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। हमने ट्राई की कि उसको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की। तो फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो। तो चले हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ पेशेंटली। अगर आप रहे कंसिस्टेंटली, अगर आप
स्टोरीज को देखते रहे, एक्सप्लेन करते रहे, समझते रहे, तो डे बाई डे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, आप लैंग्वेज पे एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो बिना टाइम उसको हम समझने की कोशिश कर लेते। द ब्लैक डॉट, जो ब्लैक होता है काला, जो काले होता है डॉट, तो समझते हैं आप, बिंदु को कहा जाता है। तो काले धब्बे और काले बिंदु के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टोरी का जो हेडिंग दिया गया इसमें, आई वुड लाइक टू शेयर ए ब्यूटीफुल स्टोरी। यहाँ बताया जा रहा है कि मैं एक अच्छा खासा स्टोरी को, एक खूबसूरत स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आई वुड लाइक टू शेयर, मैं शेयर करना चाहता हूँ अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एक खूबसूरत सा स्टोरी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। किस बारे में? एक पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। एक पॉजिटिव होता है, एक सकारात्मक सोच के बारे में। थिंकिंग होता है सोच के बारे में, सकारात्मक जो सोच होता है उसके बारे में स्टोरी में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। दैट आई रेड, जो हमने पढ़ा, जो मैंने पढ़ा, अ कपल ऑफ डेज एगो, कुछ दिन पहले। अ कपल ऑफ डेज एगो, कुछ दिन पहले, बहुत अच्छा फ्रेज है, उसको याद रख लीजिए। एक कपल ऑफ डेज एगो मतलब कुछ दिन पहले, आई रेड, जो मैंने पढ़ा एक स्टोरी को, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपका लैंग्वेज स्किल जो है वो डेवलप हो जाए। तो स्टोरी जो है हमारा, उसको स्टार्ट करते हैं पहले लाइन से। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ प्रोफेसर एंटर्ड, एक प्रोफेसर, कॉलेज का एक प्रोफेसर, एंटर्ड मतलब दाखिल हुए, घुस गए क्लास में, द क्लासरूम, क्लास में एंटर कर गए। एंड अनाउंस किया, प्रोफेसर ने क्लासरूम में घुस के अनाउंस किया, ए सरप्राइज टेस्ट, कि आज एक टेस्ट होगा, एक सरप्राइज टेस्ट होगा, अचानक सा एक टेस्ट लिया जाएगा तुम लोगों का। तो प्रोफेसर एंटर हुए क्लासरूम में, जाके कहे आज तुम सब लोगों का एक टेस्ट होगा, तो प्रिपरेशन कर लो। हियरिंग दिस, उसको सुन के, ऑल द स्टूडेंट्स गॉट एंग्जियस, जितने सारे स्टूडेंट्स थे क्लास में, गॉट एंग्जियस, वो चिंतित हो गए, एंग्जियस वो चिंतित हो गए। एक अजीब सा लगा उन लोगों को, अरे भाई आज क्या टेस्ट होगा। एंड स्टार्टेड थिंकिंग, एंड वो लोग सोचने लगे। स्टार्टेड थिंकिंग मतलब वो लोग सोचने लगे, स्टूडेंट्स जितने थे वो सोचने लगे, अबाउट, किस बारे में, अबाउट व्हाट वुड कम अप इन द टेस्ट, कि अरे टेस्ट में क्या आएगा। अचानक से प्रोफेसर ने हमको एक टेस्ट लेने के लिए क्या कहे, तो टेस्ट में क्या आएगा उस बारे में सोच के वो लोग, ऑल द स्टूडेंट्स गॉट एंग्जियस, वो चिंतित हो गए, वो चिंतित हो गए। एंड स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोचने लगे, अबाउट व्हाट वुड कम अप इन द टेस्ट, क्या आएगा टेस्ट में। उसके बाद हमारा जो है, द प्रोफेसर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर, प्रोफेसर ने क्वेश्चन पेपर जो है उसको बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, क्वेश्चन पेपर को बांट दिया। कैसे? विद द फ्रंट साइड फेसिंग डाउन, क्वेश्चन पेपर का जो फ्रंट साइड है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको नीचे करके, फेसिंग डाउन मतलब नीचे करके, मतलब क्वेश्चन को घुमा के बांट दिया। क्वेश्चन का ऊपर जो साइड है, लिखा हुआ साइड है, उसको घुमा के उल्टा करके बांट दिया। आफ्टर हैंडिंग ओवर मतलब हाथ में पहुंचाने के बाद, क्वेश्चन पेपर बांटने के बाद, पेपर्स को बांटने के बाद, टू ऑल द स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट को बांटने के बाद, ही आस्क्ड, उसने पूछा और कहा स्टूडेंट्स को, देम स्टूडेंट्स को, टू टर्न द पेज, कि तुम्हारा जो पेज है, क्वेश्चन पेपर है, उसको घुमा दो, मतलब मैंने उल्टा करके दिया, तुम उसको घुमा दो, सही कर लो। एंड स्टार्ट द टेस्ट, एंड अपना टेस्ट को शुरू करो, अपना टेस्ट को शुरू करो। आ गया समझ में? आफ्टर हैंडिंग ओवर द पेपर्स, यहां से आफ्टर हैंडिंग ओवर द पेपर्स, क्वेश्चन पेपर को सबके हाथ में देने के बाद, टू ऑल द स्टूडेंट्स, ही आस्क्ड देम, प्रोफेसर ने उनको पूछा, स्टूडेंट्स को, टू टर्न द पेज, के उस पेज को घुमा दो, क्योंकि मैंने उसको उल्टा करके तुमको दिया, फ्रंट साइज को मैंने नीचे करके दिया था। एंड स्टार्ट द टेस्ट, अपना टेस्ट को स्टार्ट कर लो, शुरू कर लो। देयर वर, टू एवरीवन सरप्राइज, हाँ यहां से टू एवरीवन सरप्राइज, अब ताज्जुब की बात क्या है, सब लोग सरप्राइज हो गए, सब लोग ये देख के सरप्राइज हो गए, ताज्जुब हो गए। देयर वर नो क्वेश्चंस इन द टेस्ट पेपर, कह रहे भाई टेस्ट पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, नो क्वेश्चंस, कोई प्रश्न नहीं दिया गया इन द टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है, हम कैसे टेस्ट दे। उसके बाद क्या है, देयर वाज जस्ट ए ब्लैक डॉट, क्वेश्चन पेपर में क्या है, जस्ट ए ब्लैक डॉट, सिर्फ एक काला बिंदु है, एक काला बिंदु है। इन द सेंटर ऑफ द पेज, क्वेश्चन पेपर जो है, पेज के पूरा सेंटर पे, पूरा बीच पे क्या है, एक काला बिंदु दिया गया है, एक ब्लैक धब्बे दिया गया है, काले धब्बे लगाया गया है। एवरीवन वाज स्टार्टल्ड, एवरीवन वाज स्टार्टल्ड, तो सब लोग क्या हो,
तो स्टार्टल्ड का जो मीनिंग होता है हमका हमारा वो है चौंका हुआ, कि एवरीवन वाज स्टार्टल्ड, वो सब मतलब चौंक गए यार उसमें क्या लिखे हम, एंड लुक्ड एट द प्रोफेसर इन ओ होता है एक डर से, एक भय से, डरा हुआ चेहरे से प्रोफेसर की तरह, लुक्ड एट मतलब देखना, देख रहे हैं। द प्रोफेसर टोल्ड द स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को कहा, तो यहाँ से देख ले, देयर वॉज जस्ट अ ब्लैक डॉट इन द सेंटर ऑफ द पेज, यहाँ से देयर वॉज जस्ट अ ब्लैक डॉट इन द सेंटर ऑफ द पेज, पेज के सेंटर पे, क्वेश्चन पेपर के सेंटर पे सिर्फ क्या है, एक ब्लैक डॉट है, काले धब्बे लगाया गए, काला बिंदु है। एवरीवन स्टार्टल्ड, तो सब ने देखकर एक चौंक गए कि क्या लिखे, एंड लुक्ड एट द प्रोफेसर इन ओ, एंड डर से प्रोफेसर की तरफ देखे। तो द प्रोफेसर टोल्ड द स्टूडेंट्स, तो प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को बताया यहाँ इस पैराग्राफ में, आई वॉन्ट यू टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट वट यू सी ऑन द पेपर। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू राइट कि तुम लिखो, अ फ्यू लाइन्स, कुछ लाइन्स, अबाउट वट यू सी इन द पेपर, किस बारे में, कि वट यू सी इन द पेपर, जो तुम पेपर में दिख रहे हो उसके बारे में तुम कुछ लाइन्स लिखो। सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि जो तुमको दिख रहा है पेपर में उसके बारे में कुछ लाइन्स, ए फ्यू लाइन्स लिखो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। इसके बाद हमारा इस पैराग्राफ में, ऑल द स्टूडेंट्स वेयर स्ट्यूपिफाइड, तो ऑल द स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स क्या हो गए, स्ट्यूपिफाइड हो गए कि उन क्या लिखे, मतलब देख के ऐसे स्तब्ध हो गए कि क्या लिख के, यार नहीं है, कुछ भी लिखने के लिए नहीं है, स्टूपिफाइड हो गए, एक स्तब्ध हो गए, उसमें क्या लिख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर स्टूपिफाइड, ऐसे थे, स्तब्ध थे, बट सिंस दे डिडंट हैव अ चॉइस, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, लिखना ही पड़ेगा। दे स्टार्टेड राइटिंग द आंसर, तो उन्होंने स्टार्टेड राइटिंग लिखना शुरू कर दिया था, द आंसर लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रोफेसर ने कहा था कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट वट यू सी ऑन द पेपर, जो तुम पेपर में दिख रहे हो सिर्फ उसी के बारे में तुम कुछ लाइन लिखो, मैं ये चाहता हूँ। तो दो ऑल वेर स्ट्यूपिफाइड, बट सिंस दे डिडंट हैव एनी चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं था, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमारा इस पैराग्राफ में हम उस पे देखेंगे, वंस एवरीवन वाज थ्रू विद द टेस्ट, जब एक बार एवरीवन, सब लोग ने, वाज थ्रू विद द टेस्ट, जो टेस्ट को मतलब शुरू से आखिर तक ले लिया, शुरू टेस्ट को कर दिया, वाज थ्रू मतलब टेस्ट, वो टेस्ट जो था टेस्ट को कंप्लीट कर दिया। द प्रोफेसर कलेक्टेड, तो प्रोफेसर जो थे उन्होंने कलेक्ट कर लिया, जमा कर लिया, ऑल द आंसर शीट, सब आंसर शीट्स को उन्होंने कलेक्ट कर लिया। एंड स्टार्टेड रीडिंग, एंड पढ़ना शुरू कर दिया था। रीडिंग होता है पढ़ना, स्टार्टेड रीडिंग पढ़ना शुरू कर दिया था। रीडिंग आउट एक फ्रेज है, रीडिंग आउट ईच आंसर, हर एक के आंसर को अलाउड मतलब जोर से, इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, इन फ्रंट ऑफ द सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ द सबके सामने, होल क्लास मतलब पूरे क्लास के सामने, होल होता है पूरे कंप्लीट क्लास, तो क्लास के सामने जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वंस एवरीवन वाज थ्रू विद द टेस्ट, जब सबका टेस्ट खत्म हो गया, द प्रोफेसर कलेक्टेड, प्रोफेसर ने कलेक्ट कर लिया पेपर को, ऑल द आंसर शीट्स को, एंड स्टार्टेड रीडिंग आउट ईच आंसर्स अलाउड, सब आंसर्स को उन्होंने जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, सारे क्लास के सामने। उसके बाद क्या हुआ, विदाउट एन एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन के बिना, ऑल द स्टूडेंट्स हैड रिटन अबाउट द ब्लैक डॉट, ऑल द स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स ने, सब छात्र ने, हैड रिटन अबाउट द ब्लैक डॉट के बारे में लिखा, विदाउट एन एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं था, किसी ने भी अलग कुछ नहीं किया, विदाउट एन एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन के बिना, ऑल द स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स ने, हैड रिटन अबाउट द ब्लैक डॉट, उस काले बिंदु के बारे में लिखा। मेंशनिंग अबाउट इट्स पोजीशन, लिखा, क्या क्या लिखा उन्होंने, मेंशन क्या, मेंशन होता है उल्लेख करना, अबाउट इट्स पोजीशन, के उसका पोजीशन, बिंदु का पोजीशन क्या है, किस पोजीशन में वो है, साइज एटसेट्रा, उसका साइज कैसा है, कहाँ बिंदु दिए गए, उसके बारे में सब ने यही लिखा पेपर पे। आफ्टर रीडिंग आउट ऑल द आंसर्स, आफ्टर रीडिंग आउट, सब पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग आउट ऑल द आंसर, सब आंसर पढ़ने के बाद, द प्रोफेसर एड्रेस्ड, प्रोफेसर ने क्या किया पढ़ने के बाद, प्रोफेसर एड्रेस द स्टूडेंट्स एंड टोल्ड, सब स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, एड्रेस करना होता है सब स्टूडेंट्स को जमा कर लेक्चर देना, एड्रेस किया, सबको जमा कर लेक्चर दिया स्टूडेंट्स को, एंड टोल्ड देम, एंड बताया उनको
क्या बताया यहाँ से देखिए उस पैराग्राफ में, नन ऑफ यू विल बी ग्रेडेड ऑन दिस टेस्ट। नन ऑफ यू, तुम में से किसी को भी उस टेस्ट में ग्रेड नहीं दिया जाएगा, ग्रेड नहीं दिया जाएगा। तो टीचर ने साफ साफ कह दिया कि नन ऑफ यू विल बी ग्रेडेड ऑन दिस टेस्ट, कि इस टेस्ट में किसी को भी ग्रेड नहीं दिया जाएगा। ये टेस्ट तुमको ग्रेड देने के लिए हमने नहीं लिया, नंबर नहीं दिया जाएगा। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू पंडर ओवर समथिंग। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं सिर्फ चाहता था टू पंडर, पंडर होता है बहुत देर से चिंता करना, किसी के ऊपर सोचना, ज़्यादातर सोचना। पंडर ओवर समथिंग, किसी के ऊपर, समथिंग तो किसी चीज़, ओवर सोचना। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम सोचो, अच्छे तरह सोचो, सोच के तुम लिखो। मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम्हारे सोच को विचार करे। मैं तुमको ग्रेड देने के लिए टेस्ट नहीं रखा था, तुमको पंडर करने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर तुम कैसे सोच सकते हो उस बारे में मैंने टेस्ट लिया। अब क्या हो गया, ऑल ऑफ यू, तुम में से सब, ऑल ऑफ यू, तुम में से सब, रोट अबाउट, लिखा, रोट, राइट के पास था रोट, राइट मतलब लिखना, रोट लिख दिया, अबाउट द ब्लैक डॉट, उस ब्लैक डॉट के, उस काले बिंदु के बारे में सबने लिखा। नो वन रोट अबाउट द वाइट पेपर, वाइट पार्ट ऑफ द पेपर। नो वन, तुम में से किसी ने भी नहीं लिखा, रोट, रोट मतलब होता है लिखना, तुम में से किसी ने भी नहीं लिखा अबाउट द वाइट पेपर, जो सफ़ेद पार्ट था पेपर का, इतना बड़ा पेपर था, वो पूरा पेपर सफ़ेद था, तुमने सिर्फ काले बिंदु के बारे में सबने लिखा। नो वन रोट अबाउट द वाइट पार्ट ऑफ द पेपर, पेपर के वाइट पार्ट जो है, पूरा पेपर जो है, उसके बारे में तुम किसी ने भी नहीं लिखा। उसके बाद क्या हुआ, द सेम थिंग हैपेंस इन आवर लाइफ्स टू, वही सेम चीज़ें, वही चीज़ें हैपेंस होता है, घटता है, इन आवर लाइफ्स टू, हमारे जीवन में, टू मतलब हमारे जीवन में भी वही सेम चीज़ें होता है। कैसे, वी ऑल हैव ए वाइट पेपर, वी ऑल हैव मतलब हमारे पास है वाइट पेपर, हमारे सबके पास एक वाइट पेपर है जीवन में, टू ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम, ऑब्जर्व करने के लिए, ज़्यादातर उस पर सोचने के लिए, उसको डीपली देखने के लिए हमारे पास एक वाइट पेपर है हमारे सबके जीवन में। एंड लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना, फ्रॉम, उससे सीखने के लिए हमारे पास वाइट पेपर्स है। येट, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज फोकस, हम हरगिज फोकस करते हैं किसमें, ऑन द डार्क स्पॉट, जो काले धब्बे हैं उसमें हम फोकस करते हैं। यहाँ से देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वी ऑल हैव ए वाइट पेपर टू ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम, हमारे पास वाइट पेपर है हमारे जीवन में, टू ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम, उसको ऑब्जर्व करने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए। येट वी ऑलवेज फोकस ऑन द डार्क स्पॉट, येट यहाँ से हम क्या करते हैं, हरगिज फोकस करते हैं वही काले धब्बे पे। वी हैव सो मेनी रीजन्स, अब यहाँ बताया गया, वी हैव सो मेनी ओके, वी हैव सो मेनी रीजन्स, रीजन्स होता है कारण, हमारे पास बहुत सारे कारण है, टू सेलिब्रेट आवर पेरेंट्स, co-workers, friends, good health, a satisfactory job, child smile, the miracles we witness every day and so on। तो यहाँ से हमारा मीनिंग हो गया, वी हैव सो मेनी रीजन्स, हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, टू सेलिब्रेट आवर पेरेंट्स, हमारे सेलिब्रेट करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, अबाउट आवर पेरेंट्स, हमारे माँ बाप को लेके, को वर्कर्स जो हमारे साथ काम करते हैं उन वर्कर्स को लेके, फ्रेंड्स हमारे दोस्तों को लेके, गुड हेल्थ हमारे अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी गुड रीजन्स है हमारा। ए सेटिस्फैक्टरी जॉब, जो जॉब है हमारा संतुष्टजनक जो जॉब है उसको बारे में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी रीज़न होता है। चाइल्ड स्माइल, जो बच्चों के स्माइल होते हैं उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा रीजन है। द मिराकल्स वी विटनेस एवरी डे, विटनेस होता है साक्षी देना, साक्षी होना। द मिराकल्स, जितने सारे मिराकल्स होता है चमत्कार, जितने सारे चमत्कार होता है एवरी डे, हमारे डेली लाइफ में, एवरी डे हर एक दिन, एंड सो ऑन, एंड ऐसे ही बहुत सारी चीजें सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा गुड रीजन है। फिर भी हम क्या करते हैं उस पे आएगा, उसको थोड़ा छोटा कर ले, ओके। हाउएवर we simply limit our horizons by focusing on just the dark spot। we simply, हम साधारण से क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, एक हद बांध दिया, एक सीमित कर दिया our horizons। horizons होता है जो परिधि, जो बाउंड्री समझ लो, हमारे जितने सारे खुशियों की बाउंड्री है उसको हमने लिमिट कर दिया, सीमित कर दिया। बाय फोकसिंग, कैसे, फोकस करके, बाय फोकसिंग, ध्यान देके, ऑन जस्ट द डार्क स्पॉट्स, जितने सारे काले धब्बे हैं हमारे लाइफ में, छोटा छोटा काले धब्बे जो है उसके तरफ फोकस करके हमने हमारा जो होराइजन्स है, खुशियों का जो बाउंड्री है बड़ा, उसको हमने लिमिट कर दिया, सीमित कर दिया।
आवर डिसअपॉइंटमेंट्स। हाँ, हम किस पे फोकस करके, डार्क स्पॉट्स जो है, काले धब्बे हैं, उसमें फोकस करके हमारा खुशियों का जो लिमिट्स है उसको छूटा कर दिया, लिमिट्स लगा दिया। एंड किसके फोकस करके, आवर डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट हमारा जो निराशा है उस पे फोकस करके, और फ्रस्ट्रेशन, जितने सारे फ्रस्ट्रेशन है उस पे फोकस करके, आवर फियर्स एंड एंग्जाइटी, जो हमारा डर है, एंग्जाइटी जो हमारा चिंता है, उस पे फोकस करके हमने लिमिट लगा दी। थिंग्स दैट बॉदर्स, एंड जितने सारे चीज़ें हैं जो हमको बॉदर करता है, जो हमको परेशान करता है, उस पे भी हम फोकस करते हैं। पीपल दैट रॉन्ग डज, लोग हमें जो नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे साथ गलती करते हैं, उस पे हम फोकस करते हैं, एटसेट्रा। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में हम फोकस करके हम क्या करते हैं, हमारे जो खुशियों के बाउंड्रीज है, बहुत सारे हमारे पास गुड रीजंस है, वैलिड रीजंस है खुशियां बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, बट हम उस पर फोकस नहीं करते। हम छोटे छोटे काले धब्बे पे, वैसे जो फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट्स, उस पे फोकस करके हमने हमारा जो होराइजंस है, खुशियों का जो बड़ा बाउंड्री है, जो परिधि है, उसको हमने लिमिट लगा दी, हमने लिमिट लगा दी। उसके बाद क्या हो गया, इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे जीवन में हर एक दिन में, डे टू डे लाइफ में, वी टेंड टू टेक सो मेनी गुड थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो मेनी गुड थिंग्स फॉर ग्रांटेड एक फ्रेज है। हम क्या कर लेते हैं, विदाउट एनी अप्रिसिएशन, हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही, जो जितने सारे हमारे पास अच्छी चीज़ें होते हैं उसको हम साधारण से ले लेते हैं, विदाउट एनी अप्रिसिएशन। वी टेंड टू टेक, हम ऐसे, टेंड होता है झुकाव, किसी चीज़ को झुकाव, उसको लेने के लिए, टेक होता है लेना, झुकाव ले लेते हैं। सो मेनी गुड थिंग्स, बहुत सारे अच्छी चीज़ें, फॉर ग्रांटेड ऐसे ही, विदाउट एनी अप्रिसिएशन, जस्ट ऐसे समझ लेते हैं। एंड फोकस किस पे करते हैं हम, एंड फोकस आवर एनर्जी, हमारे जितने सारे एनर्जी है, हमारा एनर्जी जो है, यंग एनर्जी, उसको हम फोकस किस में करते हैं, इनसिग्निफिकेंट, जब जिस जो चीज़ें हैं महत्व नहीं है, जिन चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ जो है इनसिग्निफिकेंट है, डॉट लाइक फेलर्स, जैसे उस बिंदु के जैसे फेलर्स जो होता है, एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो निराशाजनक का जो होता है, काम होता है, निराशा होता है, उस पे हम फोकस करते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जो छोटा है, उस पे फोकस करके हम हमारा जो खुशियों की जो जिंदगी है उसको हम क्या करते हैं, लिमिट लगा लेते हैं। उसके बाद है हमारा उस पैराग्राफ में, दो दीज डार्क स्पॉट्स आर क्वाइट स्मॉल, यहाँ तो द डार्क स्पॉट, जो काले धब्बे है, डार्क स्पॉट, डार्क तो अंधेरा होता है, उसको अंधेरा जो होता है वही काले होते हैं। तो डार्क स्पॉट जो काले धब्बे होते हैं, क्वाइट स्मॉल, वो बहुत छोटा होता है, एज कंपेयर टू द गुड थिंग्स, किसके कंपैरिजन में, अच्छे चीजों के कंपैरिजन में, अच्छे अच्छे जो चीजें हैं उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में जो डार्क चीजें होता है, हमारा जो डार्क स्पॉट्स होता है, काले बिंदु बहुत छोटा होता है, दैट वी हैव इन आवर लाइफ, जो हमारे लाइफ में है, येट दे परटर्व, परटर्व होता है वरी कर लेना, मेक समवन टू बी वरीड, किसी को चिंता में लगा देना, हमको एक चिंता ला देता है, हमारे एक सोच फिक्र बढ़ा, परेशानी बढ़ा देता है, आवर माइंड्स, हमारे मन में। एंड डू नॉट लेट अस थिंक पॉजिटिवली, डू नॉट लेट अस होता है अलाउ करना, नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ अस, हमको अलाउ नहीं करता, हमको पॉजिटिवली सोचने नहीं देता। उन जो ब्लैक डॉट्स है, काले धब्बे हैं हमारे लाइफ में, छोटे छोटे जो गलत चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमको पॉजिटिवली चिंता नहीं करने देता, चिंता नहीं करने देता। उसके बाद क्या है, हमारा लास्ट पैराग्राफ है हमारा, टेक योर आईज अवे, टेक मतलब लो, आईज जो है, आंखें जो है, अवे दूर रखो, फ्रॉम द ब्लैक डॉट्स ऑफ योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में जितने सारे ब्लैक डॉट्स है, जो छोटे छोटे काले धब्बे हैं, उससे अपने आंखों को दूर रखो, आईज अवे फ्रॉम द ब्लैक डॉट्स, आईज अवे फ्रॉम द मतलब दूर रखो, किससे, ब्लैक डॉट से। ट्राई एंड फोकस, एंड कोशिश करो, एंड फोकस करो, ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, लाइफ के जीवन के जो ब्राइटर साइड है, जो लाइट साइड है, जो उज्जवल साइड है, ब्राइटर साइड है, अच्छा साइड है, उस पे फोकस करो। एंड लेट पॉजिटिविटी गवर्न योर थॉट्स, एंड पॉजिटिविटी को अपने चिंता पे गवर्न करने दो, गवर्न होता है अपने मतलब चलाना, पॉजिटिविटी को अपने चिंता पे मतलब गवर्न करने दो। तो ये हो गया हमारा रीडिंग, हमारा समझाना भी कंप्लीट हो गया। अगर हम लास्ट पैराग्राफ को और एक बार देख ले, ये हमारा मॉरल है, टेक योर आईज अवे फ्रॉम द ब्लैक डॉट्स, क्या करो, हमारे आंखों को दूर रखो, फ्रॉम द ब्लैक डॉट्स इन योर लाइफ, हमारे जीवन में जितने सारे ब्लैक डॉट्स है, काला बिंदु है, काले धब्बे, उससे दूर रखो। ट्राई एंड फोकस, एंड कोशिश करो, फोकस करो ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ योर लाइफ,
लाइफ के जितने सारे अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस करो एंड लेट पॉजिटिविटी गवर्न योर थॉट्स एंड पॉजिटिविटी को अपने थॉट्स पे काबू करने दो। गवर्न होता है काबू करना, जैसा गवर्नमेंट होता है देश को चलाता है, तो चलाने दो। पॉजिटिविटी को अपने थॉट्स पे काबू लाने दो, चलाने दो। ये हमारा मतलब समझाना भी कंप्लीट हो गया, रीडिंग कंप्लीट हो गया, सब कुछ हमने कंप्लीट कर ली, कवर कर लिया। स्टोरी बहुत लंबा था। हमारे साथ पेशेंटली रहने के लिए थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ये हमारा मतलब हौसला अफजाई करता है हमको अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए, फिर भी हमको इनकरेज करता है। तो हम कोशिश करेंगे उससे और भी अच्छा स्टोरी लाने के लिए, ताकि हमारा जो लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।